हालेलुया आनंद होएगा। We welcome you back to this program in the name of the Lord Jesus Christ. आपको एक बार इस कार्यक्रम में हम लोग यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। What a great day is this that we are able to sit in the presence of God and listen to God's word and getting blessed. ये दिन कितना अच्छा दिन है कि हम लोग ईश्वर का उपस्थित में बैठकर उसका वचन को हम लोग सुनते हैं। This is the day that the Lord has given. ये दिन यहोवा ने हम लोग को दिया है And we will rejoice in Him. हम लोग उसी में आनंदित होंगे। So let us wait for God's word and be blessed. आइए हम लोग उसी का वचन सुने और हम लोग आशीषित हो जाए। I'm going to read a passage from the Bible. It is found in Mark chapter 5 verse 25 to 34. हम लोग वचन से जो देखने जा रहे हैं वो मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 5:25 से लेकर 34 तक। And a certain woman which had an issue of blood 12 years एक स्त्री थी जिसकी 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरे वस्त्र किसने छुआ? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? उसके चेला ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? And he looked around about to see her that had done this thing. तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी किसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। And he said unto her, daughter, your faith has made you whole. Go in peace and be whole of thy plague. उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, here's a beautiful incident that took place when Jesus was on the face of the earth. और ये एक अच्छा घटना घटी थी जब यीशु मसीह ने इस संसार में थे। A woman was suffering with the issue of blood for 12 long years. और एक स्त्री उसी समय थी जो 12 साल तक उसका लहू बहने का एक बीमारी था। This is a typical problem for ladies. ये एक अलग तरह का एक प्रकार एक बीमारी होता है एक स्त्री लोग के लिए। It's a very nagging and irritating problem. ये एक यंत्रणा और कष्टदायक होता है। And for 12 long years with this kind of a problem, a lady having, it is really devastating. और 12 साल तक इसी तरह का एक बीमारी से जूझना एक बड़ा कष्टदायक है। Brothers and sisters, our bodies have developed, sicknesses and all kinds of infirmities because of the sin that we do. और हम लोग का शरीर में बहुत सारे बीमारी ने ऐसे हम लोग को बीमारी में लाता है क्योंकि हम लोग का अंदर में एक जो पाप जात होता है उसी के कारण। When man was created in the beginning, he was very perfect.
जब मनुष्य ने इस संसार में पहले आया था वो पूरा संपूर्ण सिद्ध रहता था। But when our first man, that is the man, our forefathers, the first one who created, and he gave himself to the devices of the devil and sinned against God, a sickness came in and our body is succumbed to this kind of problems. और हम लोग का जो पुरुष का वो पहले जो आदमी था और उसी का पाप के कारण और उसी का जो ईश्वर का क्रोध उसके ऊपर बरता और उसके बाद जो बीमारी और तो दंड होने लगा, उसी का जो बीमारी का एक फल के कारण हम लोग को शरीर में ये सब बीमारी देखने लगा। Sickness is the penalty of sin, whether it is great sickness, big sickness, or small infirmity, or whatever it is. बीमारी एक शरीर में आना एक तरह का एक जो पाप के कारण होता है व को शरीर का खराब के कारण होता है, उसको वो बीमारी शरीर का एक दुखित घटना है। God is not the author of sickness, but He is the author of healing and life. और ईश्वर जो हम लोग को बनाया वो बीमारी का कारण नहीं है, परंतु वो बीमारी को चंगा देने वाला अधिकारी ईश्वर है। He did not institute sickness, but He instituted healing. वो बीमारी पैदा नहीं करने के लिए वो करता है, परंतु वो बीमारी को खत्म करने के लिए वो हम लोग के साथ है। That is the reason again Jesus Christ came into this world as a healer of humanity. इसी के कारण इसलिए यीशु मसीह ने इस संसार को आए थे एक सुस्थकारी ईश्वर स्वरूप। You may say that I have not committed any great sin, but then the Bible says that David's experience is in Psalm 51. He says, "My mother has conceived me in sin." और हम लोग बताते हैं कि हम लोग पापी नहीं हैं, पाप नहीं किए हैं, परंतु भजन संहिता उसका 51 में दाऊद ये गीत लिखते हैं कि मेरा माँ का कोख से मैं पाप से जन्म हुआ हूँ। That is the reason even a small child, a newborn baby, gets the sickness. इसलिए एक छोटा बच्चा जो पैदा भी होता है उसको भी बीमारी हो जाता है। Now this lady was suffering for 12 long years with the issue of blood. और यहाँ जो हम लोग देखे कि वो स्त्री 12 साल तक उसका लहू बहने का एक बीमारी था। And the Bible says here about how she lived in this world in verse number 26, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better but rather grew worse. और बाइबल ये बताती है कि 26 पद में उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ ना हुआ था। She must have been a rich woman of that area. शायद वो उसी जगह पर वो एक धनी स्त्री थी। And she had a lot of influence, and she had gone to several doctors. और शायद उसी समय उसका बहुत नामी होने के कारण वो बहुत डॉक्टर लोग को देखने के लिए उसके पास गया था। And somehow to get the healing, she tried many doctors, and the Bible says she was not bettered even smallest extent. She did not feel good even little extent, but rather she went worse. और उसी के कारण वो बहुत सारे डॉक्टर पास जाने के बाद भी और जब अपनी बीमारी के कारण वो जाकर सबको दिखाता था, वो छोटा सा कुछ उसका भलाई नहीं होता था, परंतु वो उससे दिन तो दिन उसका और बुराई होने लगा। One side, sickness is worrying factor. और एक तरह बीमारी एक चिंता के विषय होता है। And secondly, she had money and she had to lose all the money. और दूसरा तरफ उसके पास जो धन था और उसी के कारण वो सब धन भी उसको हराया। All that she had saved, that entire amount of money for 12 years from the hands of doctors, she had to pour. और अपनी 12 साल में जो कुछ वो संचय करता था वो 12 साल में उसका जो बीमारी के कारण वो सब डॉक्टर लोग को देके खर्च कर दिया। And not getting better at all. और उसी का कुछ लाभ नहीं हुआ था। Now this particular feeling, like not at all getting better, but rather becoming very worse, and that made her lose her peace. और दिन तो दिन उसका जो बीमारी बढ़ने लगा वो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ये उसका जीवन का वो शांति उसका वो चिंता का कारण हो गया था। Let us put ourselves in her place and think for a while. आइए हम लोग देखते हैं उसी के जगह पर हम लोग खुद को वहाँ रखें और देखते हैं। A disease for 12 years. एक बीमारी जो 12 साल तक। And full money, entire money lost. और जो धन हम लोग पास है उसको पूरा हरा देने से। If there is any little betterment is okay.
जो कुछ उसी से अच्छा होता है तो ठीक है, But becoming worse and worse, losing money and disease still is there in the body. परंतु धन दिन तो दिन सब खर्च हो गया और बीमारी है जैसे कि ऐसे ही है, And not having peace. और हम लोग को उसमें शांति नहीं मिल रहा है। Even the little peace that we have, that is gone. जो शांति हम लोग के पास था वो चला गया, So she has come to the roads now. अभी वो रास्ता पर आ गया। What is it? वो क्या है? How long? कितना दिन तक? She would have been crying, how long, how long, how long? शायद वो रोती होगी कि कितना दिन तक मेरा जीवन में ऐसे होगा, But where to go? कहाँ पर मैं जाऊं? All good friends suggested so many doctors. जितने मेरे अच्छे दोस्त हैं उन लोग बताए कि वो वैद्य, वो दूसरा वैद्य के पास जा। That's good. वो बात अच्छा But है, nothing better. पर उससे कुछ भला नहीं हो So रहा है। how long? कितना दिन तक How long should I suffer in my body? मेरा शरीर में ये जंत कष्ट कितना दिन तक रहेगा? There are many people asking this question. आज ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, How long I be in this suffering, Lord? मैं कितना दिन तक ऐसे कष्ट में रहूंगा? They go to all their relatives, their friends, and then pouring their hearts. और अपनी संपर्क के जितना है उन लोग जाकर उन लोग को अपना हृदय का दुख बता रहे हैं। Unfortunately, nobody will help us. दुर्भाग्यवश तो कोई भी उन लोगों को सहायता करने के लिए We नहीं है। all have limitations. सबका एक स्वतंत्रता नियम है। I am a weak person, therefore I cannot make somebody strong. मैं खुद दुर्बल हूँ, मैं दूसरों को कैसे शक्ति बनाऊंगा? Some people will say, okay, they will listen to your cry, but if you keep on crying, if you keep on, sharing your problem, they will disappear. और कुछ लोग हैं और आप लोग का दुख सुनते होंगे और उसके बाद सुनने के बाद बोलेंगे और कुछ नहीं बोल के वहां से भाग जाएंगे। At the maximum, they can sympathize with you. और ज्यादा से ज्यादा कुछ दुख बांटेंगे। To a little extent, they can help you. थोड़ा से तक उन लोग सहायता कर सकेंगे। Maybe they can help you with some money, शायद ऐसे ही उन लोग कुछ पैसा देंगे, but they cannot give you healing. परंतु उन लोग बीमारी को चंगा करने के They लिए कोई cannot नहीं give you देंगे। peace. उन लोग शांति नहीं दे पाएंगे। Brothers and sisters, ये भाई और बहनों, listen to me very carefully. ये वचन आप सुनिए। She heard one day that Jesus Christ was coming to her city. और एक दिन था वो सुनी कि उसी मार्ग पर यीशु मसीह जा रहे हैं। Somebody would have told about Jesus to this lady, शायद उसको कोई बताए कि यीशु मसीह इसी रास्ता में आ रहे हैं, and she had developed a faith in him. और उसका हृदय में एक विश्वास जात होने लगा। Is he coming to our city? अरे वो प्रभु यीशु मसीह क्या इस शहर में आ रहे Will हैं he be walking in the street? और इस मार्ग में वो जाएंगे? Wow, it's my chance. अरे ये मेरा अभी एक सुजग है। I heard so many things about Jesus. मैं यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। I heard so many healing cases. मैं बहुत सुना हूँ कि बीमारी चंगा हुआ कैसे, And all those healing cases are people healed by him when they were totally given up by doctors, given up by people. और उन लोग वही चंगा हुए जिन लोगों को इस संसार का हर तरह का डॉक्टर और वैद्य ने मना कर दिया था कि तू कभी नहीं चंगा हो सकोगे। Yes, I heard so much about these testimonies. अरे मैं ये गवाही बहुत सारे लोग से सुना हूँ। I will do one thing. मैं एक काम कर सकता हूँ, If I can approach him, मैं उनको जाकर पूछ सकता हूँ, not request him, मैं उनको अनुरोध नहीं करूंगा, but if I have faith in him, मेरा विश्वास जो उसके ऊपर है, I am sure I will also be healed. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भी चंगा हो This जाऊंगी। lady would have thought like this in her heart. शायद वो स्त्री ने उस दिन ऐसे सोचने लगी अपनी हृदय में, Her body would not have allowed her to do that. और उसका शरीर ये करने के लिए वो नहीं दे रहा था, Because when the full blood goes out of the system, क्योंकि उसका शरीर का हर ये गठन से उसका सब लोहू चला गया we था become very, very pale and weak. और वो पूरा निराशा हो गया, उसका शरीर कष्ट से उसका सब पूरा So, दुर्बल हो गया so the था। situation is not so conducive. तो इसलिए वो अवस्था नहीं था कि वो जाकर किससे मिले। But even in that worst situation, इवन भी उतना खराब अवस्था में, let me try my faith. और मेरा विश्वास जो है मैं एक चेष्टा करूंगा। I was so much faith, having so much faith on every doctor. मैं हर एक डॉक्टर के पास जाते समय बहुत विश्वास करके गए। She tried all her medicine. मैं हर तरह का दवाई ले लिया। I am not against medicine. मैं दवाई के विरोध में नहीं I am हूँ। not against any doctor. मैं कोई डॉक्टर के विरोध में नहीं हूँ। But all the treatment is only with the limit. हर एक जो चिकित्सा है उसका एक सीमा है। And each doctor will say nothing can be done. That's all. What I could do, I did. और अंत समय आते समय उन लोग बोलेंगे मेरे पास जो था मैं कर दिया, अब मैं क्या करूं। But you have to give the fees.
परंतु उसको हम लोग अपना देह देना पड़ेगा, because they did some service to you. क्योंकि वो हम लोग के लिए कुछ सेवा किए हैं, But they cannot bring healing to you. परंतु उन लोग चंगाई नहीं ले पाए, She was not healed. इसलिए वो चंगाई नहीं हुई। So all our human efforts have limitations. तो इसलिए मनुष्य का जितना चेष्टा है वो एक सीमा है, Whatever may be the learned man, still he has a limitation. और मनुष्य जितना पढ़ा लिखा को हो ना क्यों हो, उसका एक सीमा तक होगा। Her life was in bleak, और हम लोग का जीवन एक अनिश्चितता है, and her life was in darkness. और उसका जीवन में एक अंधकार आ गई Even थी। the topmost doctor could not have done anything to her. और एक जो सबसे अच्छे जो वैद्य थे उसका जीवन में कुछ नहीं कर पाए How थे। many times and how many people in this world, will come across this kind of a situation? कितने सारे लोग इस संसार में और इसी तरह का घटना में उन लोग सम्मुख हुए हैं। Even a well-experienced, highly learned, and a man of so much of a reputation still, sometimes fail. और इस संसार में बहुत सारे अनुभूतिपूर्ण और पढ़ा लिखा और सब जानने वाला एक आदमी वो सब करने के बाद भी वो पतन उसको होता है। And even that man fails, nobody can heal, nobody can help us. जब वो ऐसे करता है और नहीं हो पाता है तो कोई नहीं कर सकता। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, look at the limitation of human beings. देखिए यह मनुष्य का एक सीमा है। So she heard about Jesus who had no limitation at all. और शायद वो उसी दिन वो सुनने लगा कि यीशु मसीह जो है उसके पास कोई सीमा नहीं है। She understood that he is God. और वो समझने लगी कि वो ईश्वर है। God became flesh और ईश्वर शारीरिक रूप में आए हैं and walked among us और हम लोग के साथ रहा and dwelt among us. और हम लोग के साथ वो जीवन बिताया। She heard about this news. और ये सुसमाचार उसको पता था She thought within herself, और वो खुद सोचने लगी, my condition is very bad. मेरा अवस्था बहुत खराब है, I cannot just walk like anybody walking. और मैं दूसरे तरह कि मैं नहीं चल सकता हूँ। But I will do one thing. मैं एक काम कर सकता हूँ, Somehow I will sneak through the crowd. जैसे भी हो मैं छुप करके लोग के गहली के अंदर में घुसूंगा। Because whenever Jesus comes, there is a big crowd around him. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे। First his 12 disciples will be around him. पहले उसका जो 12 शिष्य थे उन लोग चारों तरफ थे। And after that a great multitude of people who need healing and demon possessed people who need deliverance and all kinds of problems, people will gather together there asking Jesus to heal. और उन 12 शिष्यों को छोड़ के और चारों तरफ एक बड़ा सा जनपुण्य था, क्योंकि वही जनपुण्य में लोग चाहते थे कि चंगाई होने के लिए और दुष्ट आत्मा को छोड़ने के लिए और बहुत सारा बीमारी को उसको चंगाई होने के लिए चारों तरफ उसके पास वो इकट्ठा रहते थे। And also a group of people called Pharisees, they will always be around him to find fault with him. और एक फारोसी एक दल थे और उन लोग को उसी का भूल देखने के लिए उसी के पास भी रहते थे। So how can this lady go with this kind of an infirmity? She was not even able to get up from the bed because of the loss of blood. किस और इसी गहली में और इस जनपुण्य में वो एक ही महिला है, वो कैसे उसके अंदर घुसेगा जो खुद ही एक दुर्बल है और अपना लहू बहने से वो पूरा वो दुर्बल हो गया, कैसे जाएगी? She did not think it is impossible for me to go, therefore let me drop this attempt. वो ऐसे नहीं सोचने लगी कि ये असंभव है मेरे लिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं इसको नहीं, मैं निष्पत्ति नहीं लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। Maybe you have come to the last stage of your life. शायद आप भी आपका जीवन में अंत का समय आए हैं। There is nothing after this. आप ऐसे सोचने लगे उसके बाद कुछ नहीं है। I've tried and tried and tried and tried and tried and vexed. अब मैं चेष्टा किया बहुत सारे सब कुछ किया और उसमें मैं कुछ नहीं पाया। Nothing to do beyond this. और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। Better commit suicide and die. और उसके बाद मुझे आत्महत्या करके मर जाना ठीक है। No, brother and sister. प्रिय भाई और बहन, ऐसा नहीं है। The good news is here comes God for your rescue. यहाँ सुसमाचार में यीशु मसीह आए हैं आपको उद्धार करने के लिए। When you are done everything, He will start everything now. जब आप सब कुछ कर चुके हैं अभी वो करेंगे आपके लिए। You tried and you came to an end. आप चेष्टा किए और आप अंत में पहुंच गए। Now He begins His work. और अभी वो खुद शुरू करेंगे आपका जीवन में। Something similar happened in my life also. ठीक इसी तरह मेरा जीवन में In शुरू हुआ था 1982. 1982 में। I am from a Brahmin background. मैं एक ब्राह्मण परिवार में हूँ। I tried all methods to get peace in my life. और मैं हर तरह का चेष्टा किया कि मेरे जीवन में कैसे मैं शांति My पाऊँ। mother was sick unto death.
और मेरा माँ उस समय मरने के लिए वो बेड में थे। And finally, doctor said in 2 months' time, my mother would pass away. और उस समय जो डॉक्टर थे वो ऐसे समय दिए कि 2 महीने के बाद वो चला जाएंगे। I was a student in the college at that time. और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था। And we tried all methods according to, according to what our forefathers have taught us. और मैं वो सब करता रहा जो मेरा चौथा पुरुष पूर्व लोग वंश लोग करते थे। But there was no healing and there was no peace in our family. परंतु मैं कुछ चंगाई नहीं पाया कि परिवार में कुछ शांति नहीं आया था। There were always quarrels and quarrels and quarrels only. और ओनली वहाँ उस समय गंडगोल रहता था। No peace at all in the family. परिवार में कोई भी शांति नहीं था हम But लोग we are all educated people with the highest degrees in this world. हम लोग अच्छा शिक्षाविद थे और इस संसार में हम लोग बड़ा डिग्री पाने वाला हम लोग का परिवार था। Almost everybody is a PhD in my house. और हम लोग का घर में सब लोग PhD डिग्री करने वाला Some लोग are हैं। scientists and directors and top places. और सब बहुत सारा परिवार में हम लोग का परिवार में वैज्ञानिक डायरेक्टर और बड़ा उच्च पदवी ऑफिसर लोग थे। But then there is no peace in the family. Quarrel. परंतु हम लोग का घर में शांति नहीं था और अशांति हर समय वो हम लोग का परिवार में रहता था। Where to go? कहाँ हम लोग जाएं? To whom I should go? हम लोग किसके पास जाएं? To whom I should talk? मैं किसके साथ बात करूं? Nobody can guarantee the peace which I am longing for. मुझे कोई निश्चित नहीं करेगा कि मैं जो ढूंढ रहा था। Finally, somebody presented Jesus to me. और अंत में मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई बताए। I was not ready to receive this Jesus. मैं प्रस्तुत नहीं था यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। I thought I am a great Brahmin and I am a man of upper caste and I don't need this kind of people and all that. और मेरा ये सोच था कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में हूँ और एक उच्च जाति का हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। My eyes were closed. I could not see Jesus as my savior and as my creator. और उस समय मेरा जीवन का जो आंख है उसको बंद हो गया था। मैं यीशु मसीह को मेरा परित्राणकर्ता रूप में नहीं देख पा रहा I था। could not understand that Jesus loved me so much more than anybody in this world. और उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि यीशु मसीह ने मुझे इतना प्रेम किया कि जगत में सबसे अधिक मुझे वो प्रेम किया। I did not understand the love of God. और उस समय मुझे ईश्वर का प्रेम के बारे में पता नहीं था। My dear friend, मेरे प्रिय बंधु, I kept Jesus as the last God in my life. और मैं प्रभु यीशु मसीह को उस समय सबसे अंत में रखा था कि But I ईश्वर had a desire, why not I try this Jesus? और मैं एक चेष्टा था कि अच्छा मैं अभी प्रयास करूं कि यीशु मसीह क्या If है। he does not help us, all right, we will commit suicide and go. और मैं ये निर्णय किया था कि वो मुझे ठीक से वो साहाय्य नहीं करेंगे और हम लोग उसको छोड़ देंगे। But Jesus never left us. परंतु यीशु मसीह ने हम लोग को नहीं छोड़े। We tried everything and came to an end. That was the beginning of his great work. जब हम लोग सब चेष्टा करके छोड़ दिए हैं और उसी समय वो अपनी काम शुरू किया। He touched my mother and healed her of all sicknesses just like that. वो मेरी माँ को स्पर्श किया और छूने लगी, वो चंगाई होने के बाद वो जल्दी से हो गई। We never spent any money for that. हम लोग उसको पाने के लिए कुछ पैसा खर्च नहीं किए। God is our creator. ईश्वर हम लोग का सृष्टि करता है। He is our father. वो हम लोग का पिता है। We are his children. हम लोग उनका बच्चे लोग हैं। I'll ask you a small question. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। And some of you are parents. आपको कोई पिता माता है And you have children. आप लोग का संतान भी है। God has given you children. ईश्वर ने आप लोग को संतान दिया है। You are feeding your children every day, three times. आप दिन में 3 बार आप लोग बच्चे लोग को खाना दे रहे हैं। Sometimes 4 times. कभी 4 बार। Do you demand any money from them? क्या आप जब संतान लोग को देते हैं क्या उन लोग को पैसा मांगते हैं? No, we never do that. कभी आप नहीं मांगते। Why? Because we are parents. क्योंकि हम लोग उनका पिता माता है। In the same way, ठीक उसी तरह the Father gives us the salvation free. और इसीलिए पिता परित्राण मुफ्त में दिए हैं। That's why he sent Jesus to इसलिए die on the cross. इसलिए यीशु मसीह को क्रूस कल्वरी के ऊपर मरने भेजे हैं। On your behalf and on my behalf. आपके लिए और मेरे लिए। For your sin and for my sin. आपका पाप और मेरा पाप के लिए। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और This बहनों। lady came to know about this Jesus. और इस समय वो स्त्री ने आया यीशु मसीह को जान She के somehow sneaked into that crowd और जिस तरह के वो उसके अंदर में घुस गई and touched the garment of Jesus.
Jesus. और यीशु मसीह को कपड़ा छूने लगी And her faith had brought the healing from Jesus. और उसी का विश्वास ने उसी दिन उसको चंगाई किया And that moment the issue of blood stopped. और उसी का जो 12 साल का लहू बहने का बीमारी था उस समय वो बंद हो गया That moment she felt the healing of God in her body. और उसी समय उसको अनुभव करने लगी कि उसका शरीर में वो चंगाई पाई। Look at this. आप इसको देखिए, Please look at this. ध्यान दीजिए She इसमें। tried and came to an end. और वो चेष्टा किया और अंत का जीवन में आ गया But the Lord began his work there. और ईश्वर ने उसी समय उसका जीवन शुरू किया She wasted all her money. और हर तरह का धन को वो नष्ट कर दिया But था। without any money, Jesus healed her. कोई भी पैसा खर्च बिना वो चंगाई पाया यीशु She मसीह से। lost all her peace. और पूरा वो शांति हरा दिया था। Jesus gave what she lost, the full peace, and she went home happy. जो कुछ वो खो चुका था यीशु मसीह ने उसको छूने के बाद उसको वो मिल गया और खुशी से वो घर गए। What had happened in the days of Bible happens even today, even as we believe Jesus. जो बाइबल में पहले होती थी आज भी वो अब हम लोग विश्वास करने से हो रहा है। Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, as the Bible says. और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह आज काल और अनंत काल समान है। He died on the cross, it is very true. वो क्रूस के ऊपर प्राण दिया वो सत्य है। He was buried, it is very, very true. वो गाड़ा गया वो उसको वो भी सत्य है। But good news is, सुसमाचार ये है He is risen from the dead. और पुनरुत्थित ईश्वर है God cannot die, और ईश्वर कभी नहीं मर but He सकते। died purposely for us. और क्योंकि उसका लक्ष्य था कि हम लोग के He लिए मरे gave Himself for death, और वो खुद को वो प्राण and को ले He लिए rose up from the dead. और वो पुनरुत्थित हुए He मृत्यु is से now living. और अभी वो जीवित है। This Jesus is able to heal you even today. और ये यीशु मसीह आपको चंगाई करेंगे आज भी। Jesus is alive even today. और यीशु मसीह आज भी जीवित है। Your healing is very sure. आपका चंगाई सुनिश्चित है। Believe in Jesus, my friend. यीशु मसीह को विश्वास कीजिए मेरे बंधु। Whatever may be the problem, जो भी कोई समस्या हो, whatever may be the disease, जो भी कोई बीमारी हो, how much ever money you have lost, it's okay. जितने पैसा भी आप खर्च किया है वो छोड़ दीजिए। God will bless you. ईश्वर ने आपको आशीष देंगे। God will heal you. ईश्वर ने आपको चंगाई देंगे। That's why He is speaking to you. इसलिए आज वो आपको बताते हैं Have faith in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए Receive Jesus by faith. और विश्वास के यीशु को ग्रहण कीजिए। Talk to Him. उसके साथ बात He will कीजिए। listen to your prayer. ओ आपका प्रार्थना Oh, सुनेंगे His compassion will flow into your body. और उसका दया आपके शरीर के ऊपर आएगा He will heal you, my friend. और आपको चंगाई देंगे मेरे He will बंधु make you a testimony for His name. और आपको वो गवाही देने के लिए Just as बनाएंगे। how I am a testimony for Jesus. जैसे मैं आज गवाही दिया यीशु के लिए, You will also be a testimony of His wonderful, glorious, divine healing power of God. आप भी उसी तरह का गवाही देंगे और उसका जो आश्चर्य और एक महान और शक्तिशाली कार्य आपके ऊपर होगा। My Lord Jesus, I pray for the viewers of this program, Lord. मेरे प्रभु यीशु मसीह में जो लोग देख रहे हैं उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। As they look to you in faith, O God. जब उन लोग विश्वास से तुझे देख रहे हैं, Just as what you have done to this lady in the Bible. जो आपने इस स्त्री के ऊपर किए हैं बाइबल में, She came to the extreme of her life, Lord. वो अपने जीवन का अंत में आ गई थी। Some of you people who are watching, your children, Lord, would have come to the extreme, O Lord. बहुत लोग जहाँ वो कार्यक्रम देख रहे हैं शायद उन लोग का जीवन में भी ऐसी अवस्था है। But you are ready to begin your work now. पिता आप उन लोग का जीवन में काम शुरू करने के लिए I राजी know, हैं। Lord, that you are talking to your people. मैं जानता हूँ कि आप अपने लोग के साथ बात कर रहे As हैं। they cry unto you, O Lord, even this day. जब अभी उन लोग रो रहे हैं अभी भी, I ask you, Father, that thou would be merciful and compassionate on them. पिता मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग के ऊपर तेरा दया और अनुग्रह And के ऊपर touch हो। them, Lord. उन लोग को स्पर्श कर And touch their bodies. और उन लोग का शरीर को तू स्पर्श कर Heal them completely, और उन Lord. लोग को पूरा संपूर्ण चंगाई दे। Glorify your name, और Lord. तू गौरव ले Because you don't have any limitation, क्योंकि Lord. तेरा कोई सीमा नहीं Your है। power is not limited. आपका शक्ति कोई सीमा Your नहीं है। mercy is not limited. आपका दया कोई सीमा नहीं है। Oh Lord, your favor is not limited. आपका जो अनुग्रह उसका You कोई सीमा नहीं finished है। everything on the cross of Calvary. आप सब कुछ क्रूस काल्वरी के ऊपर अंत किए हैं। Lord, our healing is granted, O Lord. और पिता ईश्वर आपका चंगाई सुनिश्चित And it है is guaranteed, O God. और इसका सुनिश्चित है। Bless them, Lord. और उनको आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Amen. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम